Good morning students, welcome back to the online sessions of class 9 science. I hope you and your family will be safe in these pandemic situations. So I requested to you and your family also, if any necessary work then go outside. If there is no any necessary work, don't go outside of homes, and if go outside home, use a protective mask of layers. So students and your families are requested to stay home and stay safe without unnecessary, don't go outside your homes. So now we are generally providing a digital medium of your educations in which we have discussing about the 3 lessons earlier as a form of science in which the matters is matter pure and about the cell. These 3 chapters we have discussing into the previous classes, what is called matter, how it can be classified as terms of the physical and chemical properties, is it a matter pure, how we can be classified the mixture, compound and element. And we have discussing about the biological chapter that is called fundamental unit of life, self, in which different kind of organelle cell in our body as a part of eukaryotic cell, prokaryotic cells, mitochondria, Golgi body, cell wall, nucleus, cell membrane, cytoplasms, plastids, etc. that we discussing in the previous class. But today we'll start a new lessons that is based on the physics, which is called motion. Now what do we mean by the motion? First of all, that generally this is the word we have been discussing or we have been learning in the previous classes, may have also been discussing about the motion. So in general definition, if any object, maybe generally I consider body or maybe object as a part of the substance, if any object, its position continuously changes with respect to any stationary object. If any object or substance, if it changes its position respect to any stationary object means what? It is like a reference point जहाँ से वो start होगा. So किसी एक point का use करके अगर कोई भी object अगर अपना position को continuously change कर रहा है, continuously change its position with respect to a specific reference point, or it is called a stationary object, is generally considered as a motion. उसका motion कहेंगे. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे को कंसीडर करके कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मोशन फॉर दैट ऑब्जेक्ट. तो इन अ सिंपल मीनिंग ऑफ फिजिक्स मोशन, कि इन एन ऑब्जेक्ट द पोजीशन इज कंटिन्यूसली चेंज विद द रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मे बी एनी रेफरेंस पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज अ मोशन. जैसे आप देखिए सारे जो प्लेनेट्स हैं, ऑल द प्लेनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के आसपास रिवॉल्व्स करते हैं. सन क्या हो गया? उसके लिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया. उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग टू बाकी के सारे प्लैनेट्स या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स उसके आसपास रोटेट करते हैं, यानी वो मोशन हो गया. सो विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट, ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजिशन, इट्स कॉल्ड एज अ मोशन. नाउ मोशन हैव अ 2 फॉर्म्स, वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन और एक को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. 2 तरीके के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं. इफ द ऑब्जेक्ट that travels a equal distance in a equal interval of time, if an object or maybe any object that covers equal distance in a equal interval of time, then that kind of the rotation of motion is called as a uniform motion. उसको uniform motion कहते हैं. Like uniform motion, a car that continuously cover 10 km into per 20 minutes. Every 20 minutes a car that covers 10 km distance, so that is called uniform motion. A specific interval of time and a specific distance, so a equal amount of distance that is traveled by any object in a specific equal amount of time, that is called uniform motion. यानी हर 20 मिनट्स के इंटरवल पे अगर कार 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस को अगर मेंटेन रख रहा है, कवर कर रहा है, तो आप उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. Now uniform motions are very rare event. It cannot be seen in our daily life, क्योंकि एक कंटिन्यूसली फॉर्म को मेंटेन करना इम्पॉसिबल है. सो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं यूनिफॉर्म मोशन के इवेंट्स, इट इज़ अ वेरी रेयर इवेंट एंड इट कैन नॉट बी सीन इन आवर डेली लाइफ. जैसे जो रोटेशन होता है अर्थ का अराउंड द सन, 365 डेज में एक रोटेशन कंप्लीट करता है एक ईयर, वो फिक्स है. 24 आवर्स में उसका एक रोटेशन ऐसे कंप्लीट होता है, फिक्स है. तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. बट हम हर 20 मिनट्स पे कार का 10 किलोमीटर कवर करेंगे, ये फिक्स नहीं है. इट इज़ अ रेयर इवेंट, इट कैन नॉट बी सीन इन आवर डेली लाइफ. अभी इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? यूनिफॉर्म मोशन के अगर टाइप देखें तो उसके अंदर यूनिफॉर्म स्पीड आता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आता है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन के टाइप्स में कंसिडर आते हैं। अगर हमें ग्राफ बनाना है, इफ़ यू वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ मोशन विद द डिस्टेंस ऑफ टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे यूनिफॉर्म मोशन में, तो ऑलवेज बी गिविंग अ स्ट्रेट लाइन विच पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ अगर यूनिफॉर्म मोशन में आप बना रहे हैं तो ऑलवेज भी इट इज़ अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है कि यूनिफॉर्म मोशन दैट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So if the object travels unequal distance in an equal amount of time, if the object that travels unequal distance in an equal amount of time, then that kind of the motion of the object is said to be non-uniform motion. उसको आप non-uniform motion कहते हो। So a car which does not cover 10 km per 20 minutes, so it is called non-uniform। अगर वो फिक्स नहीं है डिस्टेंस, अगर फिक्स डिस्टेंस उसका प्रॉपर नहीं है पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, तो आप उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हो। जनरली दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेन इनटू डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर कभी आप टाइम पे पहुंचे, कभी लेट पहुंचेंगे, कभी पहले पहुंचेंगे, तो दिस टाइप ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशंस हैपनली सीन इनटू अवर डेली लाइफ, सच एज लाइक इफेक्ट ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक के इफेक्ट की वजह से स्पीड ब्रेकर्स है, या और भी कुछ एक्सीडेंटल हैपन्स हो जाते हैं रोड में, तो उसके वजह से हमारा टाइम ड्यूरेशन लेट हो सकता है। उसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। दिस टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स is generally a types of the non-uniform motion. So if you want to plotting the graph of time of non-uniform motion, it always be not a straight line onto the x-axis. It always be having a retrograde formation, not having a straight line. So that is about the two topics, which is called uniform motion and non-uniform motion. And motion is what? Object that change its position continuously with respect to the any stationary object or maybe a reference point, then it is called as a motion. Okay? यानी मैं यहाँ पे खड़ा और कोई भी अपना पोजीशन चेंज कर रिस्पेक्ट टू मी, तो दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ मोशन, मोशन के फॉर्म में है। तो एक होता है स्टेशनरी फॉर्म और एक होता है मोशन फॉर्म। स्टेशनरी फॉर्म यानी कि डेड ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे रहेंगे, मोशन के फॉर्म यानी कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, वो मोशन का फॉर्म होता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दैट इज अबाउट द व्हाट डू यू मीन बाय द मोशन, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमें डिस्कशन करना है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन जैसा ग्राफ ड्रॉ किया है, जिसमें एक्स एक्सिस है, अलग अलग डिस्टेंसेस 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर के फॉर्मेशन में है, और ए और ऐसा पोजीशन मैंने दिया आपको, दैट इज़ पोजीशन फॉर्म कि O to A, A to B अगर मुझे पहुंचना है, तो इसमें डिस्टेंस क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो हम समझते हैं। पहला हम समझते हैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में। फर्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट, इट इज़ अ पॉइंट विच इज सेड टू बी अ रेफरेंस विच इंडिकेट टू द स्टार्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट और विच इज इंडिकेट द स्टार्ट पोजिशन ऑफ द बॉडी। रेफरेंस पॉइंट क्या है? जनरली इट इज़ अ पॉइंट विच इंडिकेट्स द रेफरेंस टू अ स्टार्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, या किसी भी बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है, उस पोजीशन को डिनोटेट करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं। विदाउट द रेफरेंस पॉइंट इट कैन नॉट बी इंडिकेट द एनी ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी, सो रेफरेंस पॉइंट इज़ नेसेसरी। अगर मुझे यहाँ से कहीं जाना है, इफ़ आई वॉन्ट टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर, सपोज यहाँ से मुझे कालोल से बड़ौदा जाना है, सो कालोल इज़ वॉट माई रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से मैं अपने ऑब्जेक्ट का स्टार्ट करूँगा। So reference point it is in a form of specific formation of point which is generally used to reference to indicate the position of body, कि position of body क्या है, कहाँ से वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है, क्या पोजीशन में है, तो उस बॉडी का पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं। रेफरेंस पॉइंट दैट शुड बी यूज इंडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो मैंने फॉर्मेशन यूज़ किया, इस ग्राफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं। द कार, पर्टिकुलर डायग्राम, अ कार दैट स्टार्ट इट्स मूवमेंट, जो कार है, द कार दैट स्टार्ट टू इट्स पॉइंट, यानी कि यहाँ पे देखिए अलग अलग, इसे रेफरेंस पॉइंट क्या है? O है, वो से वो जर्नी को स्टार्ट करता है। द कार विल स्टार्ट इट पोजिशन फ्रॉम O एंड इट रीचेज टू द 20, यानी कि वो उस पोजिशन पे पहुँच रहा है O to A। मान लीजिए कि 0 से 10 किलोमीटर गया, तो व्हेन इट मूव फ्रॉम 0 to 10, तो 0 इज व्हाट? इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट जहाँ से वो अपने बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करता है। बट अगर कार A से मान लीजिए 10 से 50 पे जा रहा है, तो A क्या हो जाएगा? उसका फिर रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो
the car start moving from point O, the car that start moving from point O, so hence O is called its reference point. O को क्या कहेंगे, उसका reference point कहेंगे. So O will be our reference point. It is not considered as a starting point. Starting point कुछ और हो सकता है, but reference point is generally indicate the position of the object. Object का position को indicate करता है. Any point that can be you represent as a reference point according to your situation. कोई भी पॉइंट को आप ग्राफ पे अपने हिसाब से रेफरेंस पॉइंट को डिनोटेट कर सकते हो. रेफरेंस पॉइंट का कोई भी यूनिट नहीं है. देयर इज नो एनी यूनिट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट. सो रेफरेंस पॉइंट जनरली गिव्स अस द क्लियर आइडिया अबाउट फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी स्टार्टेड एज अ फॉर्म ऑफ मोशन. तो वो हमें एक स्पेसिफिक आइडिया प्रोवाइडेड करता है रेफरेंस पॉइंट का. सो रेफरेंस पॉइंट इट नॉट बी ऑलवेज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. एक खास ध्यान रखना है कि रेफरेंस पॉइंट इज नॉट बी कंसिडर ऑलवेज बी एट अ ओरिजिन पॉइंट. मान लीजिए अगर मेरा व्हीकल 20 पे होता, 20 किलोमीटर पे, और 20 किलोमीटर से अगर वो अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो 20 किलोमीटर को हम रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करेंगे. इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ ओरिजिन पॉइंट. तो ओरिजिन पॉइंट अलग होता है और रेफरेंस पॉइंट अलग होता है. तो रेफरेंस पॉइंट जनरली यूज टू इंडिकेट द पोजिशन ऑफ द बॉडी. क्लियर. चलिए, यहाँ से O से अगर मैं 20 पे जा रहा हूँ तो O से अगर मेरा जर्नी स्टार्ट हो रहा है तो O इज कंसिडर माई द रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, वो मेरा रेफरेंस पॉइंट होता है. सेकंड हम डिस्कशन करेंगे डिस्टेंस के बारे में. डिस्टेंस का मतलब क्या होता है. डिस्टेंस मीन्स द एक्चुअली लेंथ द बॉडी हैज कवर्ड. कितना लेंथ जो है वो ऑब्जेक्ट ने कवर्ड किया है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक पाथ ऑफ द मोशन इन अ गिवन टाइम पीरियड. इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो ऑब्जेक्ट कितना लेंथ को कवर करता है ऑन अ स्पेसिफिक पाथ, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस. तो एक्चुअली हाउ मच लेंथ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैज बीन कवर्ड in a specific path in a actual given of time, that is called as a distance. उसको हम डिस्टेंस से कवर करते हैं. मान लीजिए अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे जो ये स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ पे पॉइंट O से मेरा कार मूव कर रहा है. तो कार दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट एंड मूव्स एट द 20 किलोमीटर. 20 तक मूव कर रहा है. फिर क्या हो रहा है, 20 से रिटर्न आ रहा है. मैंने यहाँ से एक रिटर्न का एरो भी दिया है. तो इट मूविंग फ्रॉम 0 to 20 और फिर 20 से कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है. ठीक है, तो एक्चुअली लेंथ क्या हो गई, 0 to 20 गया तो 20 किलोमीटर. फिर 20 से 0 पे आया तो फिर 20 किलोमीटर. 20 + 20 कितना हो गया, 40 किलोमीटर्स हो गया. तो एक्चुअली डिस्टेंस दैट कवर्ड बाय द कार इज कॉल्ड 50 किलोमीटर. सो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव. वो कहीं भी पोजीशन पे जाए, कहीं भी रहो, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता जाएगा और इट ऑलवेज बी इन अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव. सो डिस्टेंस गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल लेंथ of the object that is covered on a specific path on a given equal of time. तो डिस्टेंस जो होता है वो हमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताता है कि कितना जो टाइम, कितना जो लेंथ है उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया. दैट जनरली गिव्स द आइडिया अबाउट द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस दैट कैन बी डिक्रीज विदाउट अ कंसेक्यूटिव डायरेक्शन. आप उसको डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कैन बी जनरली डिस्क्राइब. आप उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे डिस्क्राइब कर सकते हो. तो डिस्टेंस ऑलवेज भी हैविंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है. तो मान लीजिए 0 से अगर 30 पे गया, 30 से फिर 50 से गया, 50 से फिर मैं 30 पे आया, तो जितना डिस्टेंस वो लेंथ कवर कर रहा है उस लेंथ को आप ऐड करते जाएंगे तो उसको आप डिस्टेंस से कवर करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस. उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, पर जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ. फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में समझाता हूँ. तीसरा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में. डिस्प्लेसमेंट अगर मैं डिस्कशन करना है तो व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट. सो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अंदर अगर चेंजेस होता है तो दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट. द चेंज इन द टाइम पीरियड और चेंज इन द ऑब्जेक्ट, इसको हम कह सकते हैं चेंज इन द पोजीशन. द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक गिवन ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट. एंड ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं. द डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज़ अ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ है और कहाँ से उसने स्टार्ट की है, उन दोनों का डिफरेंस को आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो. जैसे मान लीजिए कि मैंने कालोल से स्टार्ट किया है, कालोल से फिर मैं हालोल जा रहा हूँ, हालोल से मैं फिर बड़ौदा जा रहा हूँ. तो इनिशियल पॉइंट मेरा 0 था और फाइनल पॉइंट मेरा 100 है. तो फाइनल माइनस इनिशियल ऑलवेज गिव यू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है, आप उसको मीटर में कंसीडर कर सकते हैं, किलोमीटर में कंसीडर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कंसीडर कर सकते हैं. डिस्टेंस का भी यूनिट होता है, डिस्टेंस को भी मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. डिस्प्लेसमेंट जो है ये
आइदर भी जीरो, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. तो डिस्प्लेसमेंट दैट आइदर भी पॉजिटिव, आइदर भी जीरो, आइदर भी नेगेटिव. तो डिस्प्लेसमेंट जनरली गिव्स द आइडिया अबाउट द इंफॉर्मेशन कि ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पोजीशन क्या था और फाइनल पोजीशन क्या है, उस दोनों का एरियाज को हम डिस्प्लेसमेंट से कंसिडर करते हैं. तो दैट इज क्लियर. व्हाट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज कॉल्ड डिस्टेंस, व्हाट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. जैसे अब एक सिंपल टॉपिक यहीं पे अगर हम डिस्कशन करें तो अगर मैं O से स्टार्ट कर रहा हूँ, O इज माई ओरिजिन पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी स्टार्टेड. यहाँ से अगर स्टार्ट होकर ऑब्जेक्ट कार जो है मेरा 20 किलोमीटर पे आ रहा है तो इट इज़ कॉल्ड माई रेफरेंस पॉइंट. बट डिस्टेंस वॉट, अगर O से 20 पे गया है, 20 से फिर 0 पे आ रहा है तो 0 to 20 यानी कि 20 माइनस 0 और 20 प्लस 0 ऑलवेज वी गिव द आंसर 40 किलोमीटर. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और इस पोजीशन पे आकर रुक गया तो ये उसका फाइनल पोजीशन है और इट्स कॉल्ड इनिशियल पोजीशन. तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट गिव्स यू आइडिया अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. क्लियर. तो दैट इज जनरल टॉपिक अबाउट द रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड व्हाट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. नाउ इन डिटेल वी डिस्कसिंग अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. चलिए यहाँ पे एक ग्राफ मैंने डिनोटेड किया. इस ग्राफ के अंदर आप देखिए, ऑन द ग्राफ प्लॉटिंग I have a specific kilometer onto the x-axis like 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. First I'll moving from 0 to A, that is given point A. फिर A से मैं B पे जा रहा हूँ, that is T2, टाइम 1, टाइम 2 एंड टाइम 3. B से फिर मैं C पे आ रहा हूँ. तो मुझे अगर इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्टेंस. डिस्टेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है डिस्टेंस की. व्हाट डू यू मीन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस. सो लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन that is object covered in a given period of time, that is called as a distance. Whatever the actual length that covered by the object in a specific time interval on a specific path, that is called as a distance. उसको हम distance से consider करते हैं. अभी यहाँ पे मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, उस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जो फॉर्मेशन है डायग्राम की, वो अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वही पोजीशन यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है उसी पोजीशन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. 0, 20, 40 और 70. ठीक है, ऐसा मूव करते हैं. यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं और फिर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है. ठीक है, चलिए ऐसा एक पोजीशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं. सो हाउ वी कैन बी फाइंड द डिस्टेंस. सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ग्राफ, इन द गिवन ग्राफ सपोज द कार दैट मूविंग ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ ऑफ दैट वे. ये जो आपने ग्राफ बनाया है एक्स एक्सिस का, उस एक्स एक्सिस पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मेरा कार जो है वो मूव कर रहा है. Hence, O is taken as a reference point. O को मैं क्या कंसिडर करता हूँ, रेफरेंस पॉइंट. क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन कंसिडर करना है तो उसको एक स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है. सो O इज जनरली कंसिडर एज अ रेफरेंस पॉइंट और वहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप उसको ओरिजिन पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हो. सो ओरिजिन ऑफ द मोशन दैट शुड बी. नाउ वी हैव अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम देयर. नाउ पोजिशन ऑफ T1 at time T1, object at position A which having the 20 kilometer. At specific time T2, object on a position B having a kilometer 70, and when the time T3, object is a C position which having a kilometer 40. Then how can we find the distance? So first of all we have to be find out the total time travel. Total time travel, that is called delta T. Total time travel, that is called delta T. In that particular equation there is a 3 different timings, T1, T2 and T3. 3 अलग अलग टाइमिंग है. तो ऑलवेज भी इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल टाइम इंटरवल, इट ऑलवेज बी इक्वल टू द फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. एक्चुअली फाइनल पोजीशन कहाँ पे आकर रुका है, T3 पे, और इनिशियल क्या है, T1 है. तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज T3 माइनस T1. तो ऑलवेज भी वट एवर द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टाइमिंग माइनस इनिशियल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टाइमिंग, दैट गिव्स यू time interval. So delta T is generally represent for the time interval delta T equal to T3 minus T1. Now but I want to find out, actually मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, वो ओरिजिन पॉइंट है. A से स्टार्ट होकर B पे जा रहा है. द कार दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजिशन A फ्रॉम द B, इट हैविंग A से स्टार्ट कर रहा है, उसका स्पेसिफिक टाइमिंग होगा 70, देन इट शुड बी मूविंग फ्रॉम 70 to 40, यानी कि B से वो C पे आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या कंसीडर करना होगा इस पोजीशन के लिए. अगर हमें कंसीडर करना है तो T2 माइनस T1 या T3 माइनस T1, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम इंटरवल. बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ टोटल पीरियड ऑफ टाइम
in how much amount of time the total distance traveled by an object in a specific path that is called as a distance, उसको हम distance consider करते हैं। सो यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस हिसाब से आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो ऑब्जेक्ट इन अ फर्स्ट पोजीशन दैट स्टार्टिंग टू ए और कहाँ मूव कर रहा है 70, यानी 22 कहाँ गया 70 पे गया। सेकेंड पोजीशन पे इट इज स्टार्टेड फ्रॉम बी टू सी, बी से सी कराने के 70 से कहाँ पे आ रहा है वो फिर 40 पे आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आपको मूव करना है तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले ए टू बी प्लस बी टू सी, ए से बी पे ऑब्जेक्ट गया मेरा, फिर बी से सी पे ऑब्जेक्ट आया, तो दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ए टू बी जा रहा है तो 20 और 70 है तो 70 माइनस 20 करो, बी टू सी जा रहा है 70 40 है तो 70 माइनस 40 करो, कितना हो गया 50 प्लस 30, कितना किलोमीटर 80। तो आपके टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा व्हीकल ने, 80 किलोमीटर कवर किया होगा। तो डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी जीरो और नॉर बी इन अ पार्ट ऑफ नेगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो क्लियर कि एक्चुअली हाउ मच लेंथ दैट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल ऑन अ एक्चुअल पाथ दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। डिस्प्लेसमेंट में भी हमें पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि चेंज इन अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट के अगर पोजीशन के अंदर चेंज होता है तो आप उसको डिस्प्लेसमेंट से कंसिडर कर सकते हैं। सो द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑन अ स्पेसिफिक रूट ऑफ पाथ दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है तो उसका आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। चलिए इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट तीन तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट अगर हमें फाइंड करना है तो ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना पड़ेगा। जो दो ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, एक एग्जांपल देता हूँ। कार दैट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए, लेट आई एग्जाम्पल द कार इज स्टार्टेड टू मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, और ए से वो कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है। ओके, ए से कहाँ जा रहा है, वो बी पे जा रहा है, और बी से फिर कहाँ पे आया, सी पे आया। अ कार दैट स्टार्टिंग टू पोजीशन फ्रॉम ए टू बी एंड देन इट कम्स फ्रॉम बी टू सी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट यानी ये आपका इनिशियल पॉइंट, यहाँ से कार ने स्टार्ट किया पोजीशन और अभी किस पॉइंट पे आकर रुका है, सी के पॉइंट पे, यानी कि 40 पे आकर वो स्टॉप किया है। यानी ये उसका फाइनल पोजीशन हो गया और ये उसका इनिशियल पोजीशन हो गया। ठीक है, तो 20 से स्टार्ट किया था, 70 पे गया, 70 से फिर कहाँ पे आया, 40 पे आया। तो 40 इज अ फाइनल पोजीशन, सी इज अ फाइनल पोजीशन, यहाँ से स्टार्ट किया था इसलिए इनिशियल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, 20, यानी दोनों के बीच में पोजीशन कितना चेंज हुआ, 20 किलोमीटर। सिमिलरली अभी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। मान लीजिए कार मेरा स्टार्ट हो रहा है ए पोजीशन से, ए से कहाँ गया, बी पे गया, और बी से फिर कहाँ पे आया, ओ पे आया, जहाँ पे जीरो है। कार स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से, ए टू बी गया और बी टू कहाँ आया, जीरो आया। तो इनिशियल स्टार्ट कहाँ से था, 20 से, और फाइनल कहाँ पे आया, जीरो पे आया। तो जीरो माइनस 20 करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस 20 किलोमीटर का। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर मेरा कार स्टार्ट हो रहा है पोजीशन ए से बी पे गया और बी से फिर ए पे आ रहा है, तो इनिशियल भी 20 और फाइनल भी 20, तो वैसे समय में डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, तो चेंज इन अ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आइदर भी जीरो, आइदर भी पॉजिटिव, आइदर भी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट को हम किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर किसी में भी डिनोटेट कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप कि आज जो पढ़ा है आपने अबाउट द मोशन, जिसमें यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आपको समझ में आया होगा। तो keep revising this type of topics. We'll discussing more ahead of the motion tomorrow's lecture. So students, I requesting you stay safe, stay home, and keep revising, keep studying of this type of topics. We'll meet tomorrow. Take care. Bye.